Students, I am Singupta from JPPS. Students, today we start exercise 6.3 question 4. Exercise 6.3 question 4. Question 4 is in figure 6.42. Line PQ and RS. Line PQ and line RS intersect at point T. PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is 40 degree. Angle PRT is 40 degree. Angle RPT, angle RPT 95 degree. And angle TSQ, TSQ is 75 degree. Find SQT, आपको एंगल SQT फाइंड करना है. PQ and RS are two lines which intersect at T. Angle RPT is 95 degree. Angle PRT is 40 degree. Angle QST is 75 degree. Find angle SQT. आपको एंगल SQT फाइंड करना है. Student, see here, PRT is a triangle. आपके पास PRT क्या है? ट्रायंगल है. जब PRT आपके पास ट्रायंगल है, इट मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. PRT ट्रायंगल है ना आपके पास, तो ट्रायंगल PRT के ऑल एंगल का सम क्या होगा आपके पास? 180 होगा. सो इन ट्रायंगल PRT, स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल PRT एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल RTP इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, RPT आपके पास क्या गिवन है? 95. PRT गिवन है आपके पास 40 डिग्री प्लस RTP इक्वल टू 180 डिग्री विच इज 135. सो RTP इज 180 माइनस 135 which is 45. So students, angle RTP is 45 degree. Students, see here, RTP and STQ. RTP and STQ both are vertical opposite angle, and students, we know that vertical opposite angle are equal. So RTP equal to angle STQ because both are vertically opposite angle. Vertically opposite angles. So students, STQ, angle STQ is 45 degree. Students, see here, STQ is triangle. Triangle STQ is formed. So in triangle STQ, sum of these angle is 180. In triangle STQ, sum of all angle is 180 degree. So angle TSQ plus STQ plus SQT is 180 degree. Angle TSQ is 75. Angle STQ is 45 plus angle SQT is 180 which is 120. 180 minus 120 which is 60 degree. So students, angle SQT is 60 degree which is answer. Now students, question number 5. Question 5 is in figure 6.43. In figure 6.43, if PQ perpendicular to PS, PQ is perpendicular to PS, it means angle between PQ and PS is 90 degree and PQ parallel RS. PQ किसके पैरेलल है? SR के पैरेलल गिवन है. PQ PS पर परपेंडिकुलर है और PQ RS के पैरेलल है. एंगल SQR,
एस क्यू आर आपको 28 डिग्री गिवन है, एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पी क्यू एंड पी एस परपेंडिकुलर गिवन है, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड एस क्यू आर 28 डिग्री गिवन है, क्यू आर टी 65 डिग्री गिवन है, एंड आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट सी हेयर, पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, so angle PQR, angle PQR and angle QRT both are vertical opposite angle. Students, angle PQR equal angle QRT because these are vertically opposite angle. स्टूडेंट्स, पी क्यू आर कैन राइट एक्स प्लस 28, आपके पास एंगल पी क्यू आर है ना, आप पी क्यू आर को एक्स प्लस 28 नोट कर सकते हो। क्यू आर टी की वैल्यू क्या आपके पास 65, सो एक्स इक्वल टू 65 माइनस 28, एक्स इक्वल टू 37, so value of x is 37. Now students, we find value of y. Student, आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी एस क्यू, आपके पास क्या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी एस क्यू, पी एस क्यू में सम ऑफ एंगल कितना होगा 180 डिग्री, वन एंगल क्या है आपके पास y है, ये एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है आपके पास x डिग्री है। सो इन ट्रायंगल एस पी क्यू वाई प्लस 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो क्या होगा 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, वाई प्लस 90, एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 37, वाई इक्वल टू 180 माइनस 127 which is 53 degree. So students, value of y is 53 degree and value of x is 37 degree. Now students, question number 6. Question 6 is in figure 6.44, this side QR of triangle PQR, आपके पास triangle PQR given है, आपने साइड QR को S तक प्रोड्यूस किया, साइड QR को क्या कर रहे हो आप S तक प्रोड्यूस कर रहे हो। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंगल PQR का बाइसेक्टर क्या आपके पास QT है, एंड एंगल PRS का बाइसेक्टर क्या आपके पास TS है। QT एंड TR कट कर रहे हैं एट T, तो आपको क्या प्रूफ करना है एंगल QTR, क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव एंगल QTR हाफ ऑफ एंगल QPR। स्टूडेंट, आपके पास ट्रायंगल है PQR, आपने QR को प्रोड्यूस किया S तक, TQ इज बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड TR इज बाइसेक्टर ऑफ PRS, and we saw that angle QTR is half of QPR, आपको शो करना है क्योंकि उसका हाफ होगा। स्टूडेंट सी हियर, QT इज बाइसेक्टर ऑफ PQR, ये जो QT है, QT किसका बाइसेक्टर है PQR का, इट मीन्स ये जो QT है PQR को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है स्टूडेंट। सो एंगल TQR half of angle PQR because TQ is bisector of PQR. Same student, TR क्या कर रहा है PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स एंगल TRS half of angle PRS because TR is bisector of PRS. स्टूडेंट सी हेयर, आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PQR पास क्या हो रहा है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है,
पी आर एस क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल है, नहीं है? पी आर एस का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा? सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, बिकॉज exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angle. ये exterior angle है तो किसके इक्वल होगा? ये opposite angle के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा? इक्वेशन 1. सेम स्टूडेंट्स, ट्रायंगल क्यू टी आर फॉर्म, इन ट्रायंगल क्यू टी आर आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्यू टी आर. ये आपके पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ये एंगल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, नहीं होगा? एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर. स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ एंगल टी क्यू आर इज हाफ ऑफ पी क्यू आर. आपके पास टी क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है? 1/2 पी क्यू आर. एंड एंगल टी आर एस की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास? 1/2 पी आर एस. आप वैल्यू पुट करना. सो 1/2 पी आर एस इक्वल टू क्यू टी आर प्लस 1/2 पी क्यू आर. स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड में आप शिफ्ट करना. सो पी आर एस इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्यू टी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर. मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई करना आप. सो 2 एंगल क्यू टी आर मल्टीप्लाई करना आप, तो 2 and 2 कैंसिल आउट, पी क्यू आर. कंसिडर इक्वेशन 2. स्टूडेंट, सी हेयर, LHS of both equation 1 and 2 are equal. LHS of both equation 1 and 2 are equal. When LHS equal, so RHS also equal. So from equation 1 and equation 2, angle QPR plus angle PQR equal to 2 angle QTR plus angle PQR. PQR cancel out. Angle QPR equal to 2 angle QTR. 2 shift here, so 1/2 QPR equal QTR. So students, angle QTR half angle PQR, which be proof.